یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومنسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچا دکھانا نہیں ہے۔ پہلے میں ان سے باتیں کر سکتا تھا، ان کے ساتھ عبادت کر سکتا تھا، لیکن اب ہم دشمن کی طرح پیش آتے ہیں۔ جی رسول اللہ، آپ جس طرح سے اپنے خدائی سندیشے انہیں دیتے ہیں، اس کا اس سے کچھ نہ کچھ تو لینا دینا ہے۔ بتوں سے گھرے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو، وہ مجھے سنتے کیوں نہیں اور اس کے بدلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو پہلے انہیں چوما کرتے تھے، ہے نا؟ ارے تھوڑا رکو، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ سے ایک اور وحی نازل ہوئی ہے جس کو مجھے ان تک پہنچانا ہے۔ ارے نہیں، پھر سے وہی سب۔ دیکھو کون آ رہا ہے؟ یہ کیول ہمارے پرکھوں کے عقیدے کی توہین ہی کرنا جانتا ہے۔ کیا تم ان سب کی عبادت کرتے ہو، ان سبھی بتوں کی؟ ہاں، کچھ سمے پہلے تک تو تم بھی ان کی عبادت کرتے تھے، یاد ہے نا؟ کیا تم نے اللات، العجا اور اسی طرح تیسری منات پر غور کیا؟ اچانک شیطان نے آ کر محمد کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنے الفاظ محمد کے منہ میں ڈال دیے۔ باقی کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ محمد کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اونچے درجے کی دیویاں ہیں، آسمان میں اونچے اڑنے والے پرندوں جیسی۔ ان کی سفارش مانی جاتی ہے اور ان کی سفارشوں سے بخشش کی امید ہے۔ بہت خوب، محمد نے ابھی ہماری خداؤں کی تعریف کی۔ وہ اپنے مذہب میں واپس آ گیا ہے جو کہ ہمارے پرکھوں کا مذہب ہے۔ کیا اس نے ابھی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی تسلیم کیا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بیٹیاں بھی ہوں۔ ہاں، توحید؟ کیا توحید؟ اس کے بعد محمد نے ان بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ مکہ والے بھی اس کے ساتھ سجدے میں شامل ہوئے۔ ارے یہ تو کمال ہو گیا۔ کیا ہمیں بھی سجدہ کرنا ہوگا؟ وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ سبھی مسلم اور غیر مسلموں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ اس دن محمد پھر سے ایک مشرک یعنی بت پرست بن گیا۔ اس کے بعد محمد ظاہر طور پر ابھی بھی قریش کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اسے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے کئی بار پھٹکارا۔ قرآن سورہ المدثر آیت 1 سے 5۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے محمد، اٹھو اور چیتاونی دو اور اپنے رب کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور الرج یعنی گندے بتوں سے دور رہو۔ اللہ کی چیتاونی اس لیے آئی کیونکہ محمد ابھی بھی بت پرست تھے اور بتوں کی عبادت کرنے اور اپنے گھر میں بتوں کو رکھنے کی عادت کو بھی انہوں نے جاری رکھا، بھلے ہی انہیں نبی مقرر کر دیا گیا تھا اور ان پر اللہ کی اور سے 3 سورہ بھی نازل ہو گئے تھے۔ سورہ المدثر قرآن کی 4تھی سورہ ہے۔ محمد کے اپنے گھر پر بتوں کو رکھنے کی کہانی سنن ابو داؤد نمبر 4158 میں بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبریل میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں پچھلی رات آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ کے گھر کے دروازے پر بت لگے تھے، اس لیے مجھے روک دیا گیا، اور گھر میں ایک سجا ہوا پردہ تھا جس پر تصویریں تھیں، تتھا گھر میں ایک کتا تھا، اس لیے اس نے مجھے گھر میں لگے ہوئے بتوں کے سر قلم کرنے کے لیے کہا، پردے کو بھی کاٹا جائے تاکہ کتے کو باہر نکالا جا سکے۔ بعد میں جبرائیل محمد کے پاس محمد کی اللات، العزا اور المنات کی عبادتوں کو رد کروانے آیا تھا، لیکن عجیب و غریب طریقے سے اس کو قرآن سورہ الحج میں منسوخ کیا گیا، جو کہ محمد کے مکہ سے ہجرت کرنے کے 8 سال بعد
मदीना में नाजिल हुई थी। ये मालूमात कुरान की तमाम बड़ी कमेंट्रीज यानी तफसीरों में जाहिर हुई है। मिसाल के तौर पर इस पर एक नज़र डालें। ये अल जलालैन की कुरान की सूरह अल हज आयत 52 की तफसीर है। उन्होंने वजाहत की है कि ये आयत सूरह अन-नज़्म की आयत 19-21 के मुतल्लिक यानी संबंधित है। नबी ने कुरैश के लोगों की एक मजलिस में सूरह अन-नज़्म की इन आयत की तिलावत फरमाई। क्या तुमने लात और उज़्ज़ा पर गौर किया है और तीसरी मनात पर? कुरान सूरह 53 आयत 19 से 20 को शैतान द्वारा नबी की जबान पर काबू करने के नतीजे में शामिल किया गया, जिससे नबी बेखबर थे। ये अल्फाज इस तरह हैं, ये ऊंचे दर्जे की देवियां हैं, आसमान में ऊंचे उड़ने वाले परिंदों जैसी। इनकी सिफारिश मानी जाती है और इनकी सिफारिशों से बख्शिश की उम्मीद है, और इससे कुरैश के लोग खुश हुए। अब आइए सूरह अन-नज़्म की आयत 19 से 21 और सूरह अल हज की आयत 52 के नाजिल होने के बीच के वक्त का हिसाब लगाएं। मोहम्मद के 23 साल के नबूवत में मक्का में 13 और मदीना में 10 साल बिताए। सूरह अन-नज़्म नबूवत के 5वें साल में रमजान के महीने में मक्का में नाजिल हुई थी। इस्लामी सोर्सेस ने वजह एक्सप्लेन की है कि सजदा करने का हुक्म पहली बार इस सूरा में नाजिल हुआ था। उन्होंने जिस चीज की वजाहत नहीं की वो ये थी कि दरअसल मोहम्मद ने पहले बुतों की तारीफ की और फिर कुरैश के मुशरिकों के साथ मिलकर सजदा किया। 8 साल बाद मोहम्मद के मदीना हिजरत से ठीक पहले उन्होंने मक्का में सूरत अल हज आयत 1 से 24 नाजिल की। मदीना में पहले साल के दौरान मोहम्मद ने सूरह अल हज का दूसरा हिस्सा नाजिल किया, जो आयत 25 से 78 है। चुनाचे सूरह अन-नज़्म में शैतानी आयत के नाजिल होने के 8 साल बाद सूरह अल हज आयत 52 नाजिल हुई। नुज़ूल का मकसद शैतानी आयत को मनसूख यानी कैंसिल करना था। आखिर इतनी देरी क्यों हुई? जाहिर है कि मोहम्मद को कुरैशी खुदाओं की तारीफ करती हुई आयतों को बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इस कारण आयतों में बिना कोई बदलाव किए 8 साल गुजर गए। मदीने में निश्चय ही ऐसा कुछ हुआ जिसने इन्हें बदलने पर मजबूर किया। हुआ ऐसा होगा कि उसके दुश्मनों ने बुत परस्ती की आयतों को पकड़ लिया होगा और इस पर सवालात उठाए होंगे। वो लोग जो उसके कुरान को समझ सकते थे और इसकी जांच कर सकते थे, ये लाजमी है कि वो पढ़े लिखे लोग होंगे, जैसे कि यहूदी रब्बी। ए मोहम्मद, आपने इब्राहिमी अकीदे के पैरोकार होने का दावा किया है, जबकि आप खुद बुतों की इबादत करते हो। कुरान सूरह अन-नज़्म आयत 19 से 21 में आप अल्लात, अल उज्जा और अल मनात की तारीफें करते हो। क्या है ये सब? अच्छा, वो आयतें? हाँ? जिब्रील ने मुझे अभी अभी बताया है कि ये आयतें उससे नहीं आईं, बल्कि शैतान से आई थीं, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से मैंने शैतानी आयतें कहीं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अल्लाह ने उनमें पहले ही ये बदलाव कर दिया है। क्या तुमने अल्लात, अल उज्जा और तीसरी मनात पर गौर किया? क्या तुम अपने लिए तो बेटों को तरजीह देते हो जबकि उसकी तरफ बेटियां मंसूब करते हो? मुझे अफसोस है कि मैंने मुकद्दस आयतों का गलत तलफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन तब अल्लाह ने मुझे तसल्ली दी थी। कुरान सूरह अल हज आयत 52। जब भी हमने आपसे पहले कोई रसूल या नबी भेजा और वो हमारी बहियों की तिलावत करता तो शैतान उसकी तिलावत से लोगों की समझ पर असर डालता, लेकिन आखिरकार अल्लाह शैतान के असर को खत्म कर देगा। फिर अल्लाह अपनी बहियों को मजबूती से कायम करेगा और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और हिकमत वाला है। शैतान एक नबी की जबान और दिमाग पर काबू कैसे कर सकता है? तुम ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम मुनाफिक हो, इसलिए तुम्हारा दिल खुरदरा और कश्मकश से भरा हुआ है। कुरान सूरह अल हज आयत 53। ये सब कुछ ताकि वो शैतान के असर को इन मुनाफिकों के लिए आजमाइश बना दे, जिनके दिल बीमार हैं, और उन काफिरों के लिए जिनके दिल सख्त हैं। यकीनन जालिम लोग मुखालिफत में मगन हैं। मोहम्मद एक असली नबी नहीं हो सकता क्योंकि उसने 8 साल तक शिर्क किया। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना या अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। इस्लाम में यह नाकाबिल माफी गुनाह है। कुरान की सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 के मुताबिक बेशक अल्लाह ताला उसके साथ शिर्क को माफ नहीं करता, किंतु उससे नीचे दर्जे के गुनाह को जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने यकीनन बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा। अगर मोहम्मद को शैतान की तरफ से 8 साल तक शैतानी आयात की तिलावत करने के लिए वश में किया जा सकता है, तो दूसरी आयात का क्या होगा? हम यकीन कैसे करें कि उनमें से कोई भी शैतान की तरफ से नहीं आई है?
अल्लाह के नबी ने 1 साल तक मुसलसल शिर्क कैसे किया। जब वो कुरान में शैतानी आयत की तिलावत करते हुए पकड़ा गया, तब उसने कुरान की सूरह अल-हज आयत 53 को नाजिल किया। उसकी तिलावत से मलामत करने वालों को मोहम्मद ने बेइज्जत किया। मोहम्मद तब एक मुशरिक हुआ जब उसने कुरान सूरह नज़्म आयत 19 से 21 में कुरैश के खुदाओं की तारीफ की और उनको सजदा भी किया। 8 साल बाद उसने आयत के मवाद को तब्दील किया और इसका एतराफ कुरान सूरह अल-हज आयत 52 में किया। भाइयों और बहनों का ये तुम्हें याद रहेगा कि मुशरिक हमेशा जहन्नुम में ही रहेगा। क्या अब भी नबी की शफाअत के मुंतज़िर रहेंगे? वो जहन्नुम में है और हमेशा ही रहेंगे। क्या अब भी नबी की शफाअत के मुंतज़िर रहेंगे?